Hello my dear students, today we are going to discuss the second part of chemical reactions of diazonium salt. In previous video we discussed the first part of chemical reactions of diazonium salt, in which we discuss about the Sandmeyer reaction. In today's video we are going to discuss some chemical reactions of diazonium salt, in which we are going to discuss the first chemical property in today's video, that is reaction with potassium iodide. Chemical reactions of diazonium salt, in which we are going to discuss the first chemical property in today's video, that is reaction with potassium iodide. So शुरू करते हैं आज की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायazonium सॉल्ट से, वो है रिएक्शन ऑफ डायazonium सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड. रिएक्शन ऑफ डायazonium सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमें डायazonium सॉल्ट की रिएक्शन जो है वो यहाँ पे करनी है. तो सिंपल ऐसे रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है. So diazonium salt get reacted with potassium iodide to give aryl iodides. डायazonium सॉल्ट जो है उसको ट्रीट करें पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है अरिल आयोडाइड्स. व्हाट हैपन इन दैट रिएक्शन? द आयोडाइड ग्रुप ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिस्प्लेसेस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन diazonium salt or aryl diazonium salt. Because of that there is a formation of Ar bond I, that means aryl iodide. सिंपल ऐसे जनरल केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें यहां पे जो है वो मिलती है. सो रिएक्शन Ar bond N2 positive X negative heated with potassium iodide, and there is a formation of Ar bond I along with N2 and Kx. Ar bond I, that means aryl iodide जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. ऐसे सिंपल केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है डायazonium सॉल्ट की विद पोटेशियम आयोडाइड. अब इसका एग्जांपल देखेंगे. व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन डायazonium क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड. इसका एक एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें हमें देखना है व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन डायazonium क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड. सो बेंजीन डायazonium क्लोराइड, that is C6H5N2 positive bond Cl negative, it reacts with potassium iodide. इस मिक्सचर को जो है वो हीट करना है, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, and there is a formation of C6H5 bond I, that means फिनिल आयोडाइड यहाँ पे हमें मिल रहा है, और आयोडोबेंजीन इसको हम कहेंगे. सो आयोडोबेंजीन get prepared by the reaction of benzene diazonium chloride along with potassium iodide. साथ साथ हमें प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है. N2 जो है वो वहां पे रिलीज हो रहा है, इसको अजो ग्रुप भी हम कहते हैं, और एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज KCl पोटेशियम क्लोराइड. तो ऐसी सिंपल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है. C6H5N2 positive Cl negative, that means benzene diazonium chloride reacts with potassium iodide, that is Ki. This mixture gets heated and there is a formation of C6H5 bond I, that is iodobenzene, along with N2, along with release of N2 and the byproduct, that is potassium chloride. So this is overall the reaction of diazonium salt with potassium iodide. Now the next chemical reaction of diazonium salt is Bals-Schiemann reaction. जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डायazonium सॉल्ट की वो है Bals-Schiemann रिएक्शन, और रिप्लेसमेंट ऑफ डायazonium सॉल्ट बाय फ्लोराइड ग्रुप. रिप्लेसमेंट ऑफ डायazonium ग्रुप बाय फ्लोराइड ग्रुप. डायazonium ग्रुप को जो है वो फ्लोराइड ग्रुप से हम रिप्लेस करने जा रहे हैं यहाँ पे. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फ्लोराइड आयन इन बेंजीन रिंग. एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तो फ्लोराइड फॉर्मेशन कर रहे हैं.
फ्लोराइड ग्रुप को जो है वो बेंजीन रिंग में जो है वो अटैच कर रहे फिनाइल रिंग में। सो जनरली क्या होता है कि हम क्लोराइड्स लेते हैं, आयोडाइड्स लेते हैं या ब्रोमाइड्स जो है वो फॉर्म करते हैं। यहां पे हम फॉर्म करने जा रहे हैं फ्लोराइड्स। सो व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन? हियर द diazonium salt get reacts with fluoroboric acid, that is HbF4। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ डायazonium सॉल्ट जो है वो यहां पे रिएक्ट हो रहा है। So because of that there is a formation of precipitate, that is diazonium fluoroborate. After filtration and drying, that diazonium fluoroborate, it get decomposed into aryl fluoride by heating. So जो diazonium fluoroborate यहाँ पे फॉर्म हो रहा है by the reaction between diazonium salt and fluoroboric acid, जो प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है उसको हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो फिल्टर करना है, उसके बाद में ड्राई करना है और फिर उसको हीट करना है। बिकॉज ऑफ हीटिंग प्रोसेस दैट डायazonium fluoroborate जो है गेट कन्वर्टेड इनटू अरील फ्लोराइड। सो फाइनली हमें अरील फ्लोराइड्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। सो रिएक्शन क्या हो रही है? तो diazonium salt, that is Ar bond N2 positive H negative, get reacts with fluoroboric acid, that is HbF4, and there is a formation of precipitate, that is diazonium fluoroborate, that is Ar bond N2 positive BF4 negative, get dried, then heated, and finally there is a formation of Ar bond F। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? तो अरील फ्लोराइड्स जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं। तो ऐसे सिंपल सी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है किसके साथ? तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। कौन रिएक्ट हो रहा है? तो डायazonium सॉल्ट्स। साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। एक तो रिलीज ऑफ N2 ग्रुप, दैट मींस नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, साथ साथ मिल रहा है आपको BF3 बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। सो ये हो गई जनरल रिएक्शन when diazonium salt reacts with fluoroboric acid. This reaction is named as Bals-Schiemann reaction. Now इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम कि कैसे अरील फ्लोराइड जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं by reacting fluoroboric acid with benzene diazonium chloride. What happens when benzene diazonium chloride reacts with fluoroboric acid? So इसका सिंपल सा यहाँ पे एक आंसर जो है हम दे सकते हैं by giving this reaction, that is benzene diazonium chloride, that is C6H5 bond N2 positive bond Cl negative reacts with fluoroboric acid HbF4. There is a formation of benzene diazonium fluoroborate, that is C6H5N2 positive BF4 negative. ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमें मिल रही है। इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे, फिर उसके बाद में ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको जो है वो हीट करेंगे। ओनली बिकॉज ऑफ हीटिंग प्रोसेस इट गेट डिकम्पोज इनटू C6H5 bond F along with BF3 and N2. So बेंजीन फ्लोराइड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है और जिसको हम कहते हैं फ्लोरोबेंजीन, that is C6H5 bond F. So overall this is Bals-Schiemann reaction or displacement of diazonium group by bond F. Now the next chemical property of diazonium salt, that is reaction with phosphinic acid or hypophosphorus acid. आज की थर्ड केमिकल रिएक्शन जो है डायazonium सॉल्ट की वो है रिएक्शन विथ फॉस्फेनिक एसिड। अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? तो एक्चुअली हमें करना है रिडक्शन ऑफ डायazonium आयन बाय यूजिंग hypophosphorus acid or phosphinic acid. So स्टेटमेंट क्या होगा इस रिएक्शन का? तो रिडक्शन ऑफ डायazonium आयन takes place by using phosphinic acid or hypophosphorus acid, and there is a formation of arenes.
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, तो अरिन्स जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं। एंड दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड और phosphinic acid get oxidized into phosphorus acid. Now the reaction, aryl diazonium salt, that is Ar bond N2 positive X negative aryl diazonium salt get reduced by using hypophosphorus acid along with water S3PO2 plus H2O, and by reduction it get converted into Ar bond H, that means arynes along with release of nitrogen. यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है और साथ साथ हमें मिल रहा है यहाँ पे H3PO3, that is phosphorus acid. तो इस तरीके से ये सिंपल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है। ये तो हो गई जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ डायazonium salt with phosphinic acid। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। So what happens when benzene diazonium chloride reacts with phosphinic acid? So benzene diazonium chloride, that is C6H5 bond N2 positive Cl negative, reacts with hypophosphorus acid or phosphinic acid along with H2O. So C6H5 N2 positive Cl negative plus S3PO2 plus H2O get converted into benzene. हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजीन C6H5 bond H, that means C6H6, that is benzene along with release of nitrogen। साथ साथ हमें मिल रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड। सो इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ डायazonium salt by using phosphinic acid। Now the next chemical property of diazonium salt, that is reaction with ethanol. Again it is a reduction of diazonium salt by using ethanol. Now what happens when diazonium salt reacts with ethanol? Actually there is a formation of ethanol. So by reduction of diazonium salt by using ethanol, there is a formation of ethanol along with benzene and release of nitrogen। So ऐसे सिंपल यहाँ पे रिएक्शन हो रही है जिसमें डायazonium salt जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अरेन्स, एंड जो रेड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं इथेनॉल, इट गेट ऑक्सीडाइज इनटू इथेनॉल। इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। सो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो इक्वेशन क्या है? Aryl diazonium salt, that is Ar bond N2 positive X negative reacts with ethanol, that is CH3 bond CH2 bond OH. So by the process of reduction यहाँ पे हमें मिल रहा है arynes, that means Ar bond H plus release of nitrogen gas। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है और हमें मिल रहा है यहाँ पे इथेनॉल, that is CH3 bond CHO along with HX। तो इथेनॉल भी मिल रहा है हमें और अरेन्स यानी बेंजीन जो है वो भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बाय रिडक्शन ऑफ डायazonium salt बाय यूजिंग इथेनॉल। तो एक सिंपल सी ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है ये डायazonium salt की, जिसमें डायazonium salt जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अरेन्स, एंड जो रेड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं इथेनॉल, इट गेट ऑक्सीडाइज इनटू इथेनॉल। इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। सो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो इक्वेशन क्या है? Aryl diazonium salt, that is Ar bond N2 positive X negative reacts with ethanol, that is CH3 bond CH2 bond OH। So by the process of reduction यहाँ पे हमें मिल रहा है arynes, that means Ar bond H प्लस रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है और हमें मिल रहा है यहाँ पे इथेनॉल, दैट इज CH3 बॉन्ड CHO along with HX। तो इथेनॉल भी मिल रहा है हमें और अरेन्स यानी बेंजीन जो है वो भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बाय रिडक्शन ऑफ डायazonium salt बाय यूजिंग इथेनॉल।
तो एक सिंपल सी ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है ये डायज़ोनियम सॉल्ट की। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। What happens when benzene diazonium chloride reacts with ethanol? So डायज़ोनियम सॉल्ट में हम कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिडक्शन होता है बाय द रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग इथेनॉल, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहला प्रोडक्ट तो आपको मिलता है बेंजीन C6H6। दूसरा प्रोडक्ट दैट इज रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, सो N2 जो है वो रिलीज होता है। थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है दैट इज इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनॉल, दैट मींस CH3 बॉन्ड CHO। एंड लास्टली एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज HCl। सो ऐसी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है यहाँ पे। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड दैट इज C6H5 bond N2 positive Cl negative reacts with CH3 bond CH2 bond OH, that is ethanol. Reduction process takes place and there is a formation of C6H5 bond H or C6H6 or जिसको आप कहेंगे benzene along with N2, then ethanol that is CH3 bond CHO and a byproduct that is HCl. तो इस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन हमने किया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का बाय यूजिंग इथेनॉल। सो ये एक रिडक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो हमने देखी इथेनॉल की, जिसकी वजह से हमने रिड्यूस किया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड।